So today we will discuss the first question that is related to the operator, right? So when we are talking about the operator, that we know that what is the operator, types of operator, and the one thing that we should keep in your mind, that operator will be apply on the operands, right? So as an example, 10 plus 15, this is what exactly the one expression where the 10 and 15, these are the operands and the positive sign is a operator. Now we know that the arithmetic operator, that's why we can say that the positive sign indicates the particular arithmetic operator. The value can be any type other than void. So nothing means void means nothing or empty. So empty should not be there. So that chart we also know that modulus was the one new member in that particular chart which we don't know, but modulus is nothing but the to find out the remainder, right? So with the help of that reminder we can get several results, several calculation parts, and on the basis of that we can conclude that whether the particular number is of this category or that category, or even if we can find out that the sum of the divisors, like if you say that we have a number 32, तो 32 को आप कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हो, ये अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर का जो पार्ट है वो कंसिडर करेंगे जहाँ पे एब्सोल्यूट डिवीजन होता है, मीन्स जीरो रिमाइंडर आता है, इन दैट केस दैट पर्टिकुलर नंबर इज कंप्लीट, कैन कम्प्लीटली डिवाइड द 32 नंबर, ठीक है? तो हम 2 को कंसिडर कर सकते हैं, 3 को कंसिडर कर सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल दैट 3 कैन डिवाइड 32? नो. वाई यू कैन से दैट ये नहीं होता है करके, एनीवन? रिमाइंडर इज नॉट जीरो. रिमाइंडर जब तक कि जीरो नहीं आता है तब तक कि हम नहीं बोल सकते वहाँ पे कि ये इससे इसका ये फैक्टर है या फिर इससे डिवाइड होता है 32, राइट? 4 से, 4 से डिवाइड होता है, 5 से, नो, 6, नो, 7, नो, 8, yes, 9, 10, नो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, okay, 16, yes, right? So likewise, what you are checking, we are just checking that whether that 32 lies in the table of that number, ये हम चेक करते हैं जनरली, ठीक है? या फिर हम अगर उसको डिवाइड कर देते हैं उस नंबर के साथ, जो भी मैंने नंबर्स बोले 16 17 तक, ठीक है, 18 तक समझो, तो जो भी नंबर्स मैंने बताए उससे हम उसको डिवाइड करते हैं एंड वी विल गेट द answer in a reminder as a zero, and once we get the answer as a zero we can say that it is a complete factor or divisible number of 32, ठीक है? So in that case also we can do the programming, and where we get the zero we can say that this number is a perfect divisible. Another number if we give, we can also get the same experience, right? So with that, uh, there are lots of utilities about the modulus or modular division, right? That we will see in a upcoming programs. Now we have discussed that particular part, and there are variety of writing styles about the arithmetic operators: plus, minus, multiplication, division, modulus, minus a into b, that we know that if there is one operand is minus, then the whole result will be the minus, right? Then a modular division operator cannot be used on a floating data. फ्लोटिंग पॉइंट जो डेटा रहता है वहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते उसको, ठीक है? कोई स्पेशल रीज़न हो सकता है इसका, एनीवन? वाई वी कांट यूज़ द मॉड्यूलर operator or modular division operator on a floating point?
always becomes हाँ, okay. So in that case we use only integer data type to get the reminder from with the help of a modular division operator, right? So that's why we are not using the floating point data. Then C does not have any operator for एक्सपोनेंशियल, जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, बाद में स्क्वायर, क्यूब, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लॉगरिथमिक टेबल का भी हम यूज़ करते हैं लॉग वैल्यूज़ निकालने के लिए, बाद में डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। सो ऑल दीज functions that we can use, but they are not lies under the head of a arithmetic operator, right? Just like that C does not have any operator for exponential. Then the older version of C does not support unary plus, but ANSI C supports it. Unary plus नाम का जो भी एक operator है उसको नहीं support करते. Then we switch to the next part, sub part of a arithmetic operator, that is a integer arithmetic. When we are talking about the both the value of integers are there, then we are not using any decimal point. 10 प्लस 10 20 होता है, बट वहाँ पे हम कभी भी 10.00 प्लस 10.00 प्लस इक्वल टू 20.00 ऐसा हम नहीं लिखते. इट इज़ अज्यूम टू बी दैट if it is an integer number, then it is having a zero fractional part on the right hand side, कुछ भी नहीं रहेगा, right? when the both when both the operands in a single arithmetic expression such as a plus b are integer, the expression is called as an integer expression and the operator is called as a integer arithmetic. सिंपली जो इंटीजर डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं उसी प्रकार से इसको भी आप यूज़ करने वाले हो. इंटीजर अरिथमेटिक ऑलवेज एल्ड्स एन इंटीजर वैल्यू. द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मशीन as pointed out earlier. It just mean that मशीन जो भी जैसे 10 प्लस 20, तो इट डिपेंड्स कि 20 में 10 ऐड करना है या फिर 10 में 20 ऐड करना. तो जनरली मशीन कंसिडर दैट द लार्जेस्ट वैल्यू शुड बी एडेड इनटू द स्मॉलेस्ट वैल्यू. और निगेशन अगर करना है, सिंपल माइनस अगर करना है, सो डेफिनेटली वी विल हैव अ 10 minus 20, so greater sign of a bigger value will be taken, that will be the no problem. But when we are doing addition, in that case the largest number will be taken first, whether it is written in a second position, means value of a is 10 and value of b is 20, but 20 will be added into 10, means 20 will consider as a first value and 10 will consider as a second value. It depends on that particular machine, right? Means compiler. In the above example, if a and b, means below examples, in b a and b are integers, then for a equal to 14 and b equal to 4, so we have the following results: a minus b, that means it is okay. 14 minus 4, then the positive value will be there. If vice versa is there, then minus 10 will be the value. अगर हम 4 minus 14 करते हैं तो a plus b 18, a into b 56, a divided by b 3, decimal part truncated. Now what is the meaning of truncated? Anyone? Chetan, what is the meaning of truncated? Okay. Then Gokul, Ishwari, Nimish, okay, Saharsh, Saharsh, am I audible? Okay,
हाँ, yes sir, am I audible? Okay, no response. Sarvesh, we have a Sarvesh, but only one Sarvesh respond. Okay, no problem. Uh, any Sarvesh, can you tell us that? Okay, okay, search, no problem. Why? What is the meaning of a truncated, Sarvesh? Take a taken out. Okay, okay, taken out that part. Exactly, exactly, exactly. Look, आपके पास मोबाइल है, सबके पास, करेक्ट? ठीक है, गूगल भी है आपके पास, इंटरनेट भी है आपके पास, ठीक है, इट्स क्वाइट इजी, राइट? इजीली आप स्विच करके उसको सर्च कर सकते हो। क्लास में अगर होते तो मे भी ठीक है, चलो मैंने ये लगता है कि कैसे गूगल करना, बट आई विल नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। क्लास में भी मैं अलाउ करता था कि अगर आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना है फॉर एक्सेसिंग गूगल ओनली, देन यू कैन एक्सेस इट, ठीक है? क्योंकि एटलीस्ट आप अगर सोचते हो या फिर सर्च करते हो उस पर्टिकुलर और उसके बाद उसके ऊपर सोचते हो, यू शुड नो दैट पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज, ठीक है? जैसे हमारे आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज रहती हैं, ठीक है, तो वो बहुत सी चीज़ें हमको पता भी नहीं रहती। यही से कुछ चीज़ें एक्सपांड होती है, जैसे ट्रंकेट। ट्रंकेट मीन्स दैट पार्ट इज अवॉइडेड और दैट पार्ट इज रिमूव्ड, राइट? वो वहाँ से भी दिख सकता है आपको, a डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू 3। तो 3 तो यानी 14 डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिविजिबल है क्या 14? यानी रिमाइंडर 0 आ सकता है क्या? नो। सो डेफिनेटली डेफिनेटली सम डेसिमल पार्ट विल बी देयर, रिमाइंडर 0 नहीं है तो जो डेसिमल पार्ट जो है उसको उन्होंने हटा दिया और उन्होंने 3 एज अ कंसिडर कर लिया, ठीक है? देन लेटर ऑन a modulus b, the remainder part, that is what, 2, correct? So that was yes, 2 2 नहीं, 3 3 3 3, हाँ 3.2, 3.2, okay. So truncated means that when you declare the value of a and b, both are integer, right? Both are integer, 14 divided by 4, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके फ्लोट में, कितनी आएगी? 3.2 something, right? Now in that case what happened, when yes, when you yes, when you store the result, when you store the result into the third variable, a और b ये तो हमारे values है 14 and 4, but if you want to store the result into the third variable, and that will be display, so c equal to a divided by b, c की वैल्यू आ जाएगी 3.2। अगर आपने c को डिक्लेयर किया है इंटीजर, तो वो फ्लोट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ 3 एक्सेप्ट करेगा, 3.2, उसके बाद का जो पार्ट है वो ट्रंकेट कर देगा, क्योंकि उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। हाँ, अगर आप c को फ्लोट कंसिडर करते हो, then it will show you the 3.2 actual answer. We will see in the programming, but whenever there is a mismatch in the values data type and where the values will be stored, that variables data type, यानी c इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b, c का डेटा टाइप अलग है, a और b का डेटा टाइप अलग है, ठीक है? इन दैट केस इट विल फॉलो द डेटा टाइप रूल ऑफ द वेरिएबल इन विच द कैलकुलेशन पार्ट विल बी स्टोर्ड, यानी 14 डिवाइडेड बाय 3 का जो 14 डिवाइडेड बाय 4 का जो भी वैल्यू आएगा वो स्टोर्ड होने वाला है सी वेरिएबल में। तो सी वेरिएबल का डेटा टाइप अगर इंटीजर है तो वैल्यू 3 एक्सेप्ट होगी, फ्लोट है तो 3.2 एक्सेप्ट होगी, राइट? ओनली इंटीजर पार्ट, यस यस, ओनली इंटीजर पार्ट, ठीक है? दैट्स वाई व्हेन वी स्टार्ट द प्रोग्रामिंग आई जस्ट से दैट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, आपकी आउटपुट जो आपको चाहिए, सो देयर रिक्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर डीलिंग विथ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंक,
if you are talking about the rate of interest, so that rate of interest value will never be the absolute value. 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 12%, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। पेट्रोल के प्राइस, पेट्रोल के प्राइस कभी तो भी आपने ऐसा देखा है क्या कि 90 रुपीज़ है डॉट, 100 रुपीज़ है डॉट। ठीक है। वो कुछ ना कुछ फ्लक्चुएट होता ही है, क्योंकि उनको उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। सो वो 98.78, 99 पॉइंट समथिंग, 95 पॉइंट समथिंग। ठीक है। तो उस हिसाब से वो पैसे में कैलकुलेट किया जाता है ना। वहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट जो है, डेसिमल पॉइंट के बाद का पार्ट जो है, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड। इवन इफ व्हेन यू वांट टू परचेस अ शेयर्स, शेयर मार्केट में भी उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। डेसिमल पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज़ है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो वैल्यू जब एक सिंगल नंबर से रिलेटेड होती है दैट इज़ ओके, बट दैट वैल्यू इज रिलेटेड विद द सिंगल नंबर एंड मल्टीप्लाइड बाय द एन नंबर ऑफ पीपल। कितने लोग उस पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। 0.50 है ना, 0.5% अगर प्रॉफिट हो गया है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, तो उसका अगर टर्नओवर है 1,000 रुपीज़, ठीक है, तो 0.5 यानी कुछ भी नहीं है। 10,000 है, 10 लाख करोड़ अगर उसका प्रॉफिट है, उसमें 0.5 अगर वैल्यू निकालनी है आपको, सो दैट इज अ ह्यूज वैल्यू। वैसे 0.5 का तो कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है। 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 में। ठीक है। बट इफ द वैल्यू इज बिगर than the crores, then definitely that value is very important. So likewise, when we are having a floating value, we should declare the one variable which stores that value as a result, that floating data type, उसका भी डेटा टाइप फ्लोटिंग होना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं है हमको पता पहले से, बाद में हम जब टेस्ट करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं हम बार बार आउटपुट देखने के लिए, तब जैसे आपको पता चल जाता है कि ये आउटपुट में कुछ तो भी गड़बड़ हो गया। ठीक है। पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू अगर मैं कंसिडर करूँगा कि पाई इंटू, जैसे पाई ऑलरेडी डिफाइन है एस टी मैथ डॉट एच में या फिर एस टी डी डॉट एच में, तो मैं अगर पाई की सेपरेट एक वेरिएबल लेता हूँ पी आई पाई, और उसको इंटीजर डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है, तो वो डेफिनेटली आप 3.14 भी लिखोगे और मल्टीप्लाइड बाय 2 बार रेडियस भी करोगे तो उसकी वैल्यू जो लेगा वो 3 ही लेगा, 0.14 लेगा ही नहीं। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, माइनर चेंजेस हो जाएंगे, बट दैट दैट बिकम्स अ मेजर वन। ठीक है। जैसे आपने अगर ये चीज़ देखी होगी कि बहुत बार रोड कंस्ट्रक्शन में या फिर सिविल इंजीनियरिंग में बोलो या फिर स्पेस स्पेस रिलेटेड कैलकुलेशन जो रहते हैं, वहाँ पे माइनर भी चेंज हो गया तो बहुत बड़ी मिस्टेक कंसिडर की जाती है। जैसे आपने अगर सुना होगा कल्पना चावला, इनके बारे में अगर सुना होगा, तो उनका जो मिशन था स्पेस मिशन, तो कुछ तो माइनर चीज़ों की वजह से वो फेल हुआ था। वो जस्ट नियर टू अर्थ थे, वो अगर मे बी ब्लास्ट नहीं होता था तो वो लैंड हो जाते थे और सेफ रहते थे सबके सब, बट जस्ट नियर टू अर्थ कुछ समय का बात थी और वो ब्लास्ट हो गया और उसमें से कोई भी नहीं बचा। जो भी एस्ट्रोनॉट्स थे जिनके नाम पे अच्छे खासे रिकॉर्ड्स थे वो सभी के सभी वहाँ पे मारे गए। ठीक है। तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन का पार्ट बहुत माइनर रहता है। ठीक है। लाइकवाइज व्हेन वी आर हैविंग अ डेसिमल means integer value, we should follow the integer data type declaration. If we want a float value, then we should follow for the float data type, right? Then second part, that is the B part, real arithmetic. Now in case of the arithmetic operation involving only the real operands is called as the real arithmetic. Now what is the real operand? The real operands may assume value either in decimal or exponential notation. Since floating point values are rounded to the number of a significant digits permissible, the final value is an approximation of the correct result. Just like that, if you got the 79.60%, तो आप जनरल टर्म में किसी को अगर बताते हो तो आप कभी नहीं बताओगे कि मुझे 79.60% है। वी ऑलवेज से दैट मुझे 80% है। करेक्ट? एम आई राइट और रॉन्ग? गर्ल साइड
गर्ल साइड में भी 85 बताते होंगे। ऐसा है क्या कोई कुछ? नहीं, जो है वही बताते हो। रिया, श्रावणी, सिमरन। ओके, नो प्रॉब्लम। बट दोस्तों में तो ऐसा होता है बहुत बार कि हम बताते हैं कि सामने वाले को अगर 70 है तो हम बताते हैं 71 है मुझे, 1% ज़्यादा है तेरे से, भले वो 70.69 होगा, बट इट इज़ कंसिडर्ड एज अ 71। इज इट सो? कोई पॉइंट में बताता है क्या जनरली? जनरली हम कंसिडर नहीं करते कि भाई, ओवरऑल ही बताते हैं, यानी राउंड फिगर, राउंड अप, राइट। एंड एग्जैक्टली, इवन if we got 39.5 marks, actually we require the 40 marks to crack the paper in engineering, every paper। उसमें से 20 मार्क्स रहते हैं इंटरनल, और 20 मार्क्स आपको, 80 में से 20 मार्क्स आपको निकालने रहते हैं एक्चुअली। बट बहुत बार वो भी नहीं होता है ड्यू टू सर्टन प्रॉब्लम्स। ठीक है, मेजर रीजन रीज़न तो ये है कि हम पढ़ाई नहीं करते, वो एक रीज़न है, उसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट द पॉइंट इज, वी रिक्वायर 100 आउट ऑफ 40 मार्क्स। आउट ऑफ दैट 20 मार्क्स इज गिवन बाय कॉलेज एज एन इंटरनल marks, and we have to appear for the 80 mark paper, and out of that we have to secure 20 marks, right? So by the chance, if you get 19.5 marks in the theory and we get the 20 marks। किसने मेरे को बाहर निकल दिया रे भाई? डिसमिस ही कर दिया, मीटिंग से बाहर निकल दिया। कोई बात नहीं। तो दैट 19.5, इज माय वॉइस इज क्लियर? हेलो, हेलो। हेलो। समवन रिमूव मी? क्यों भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? ओके ओके, मुझे भी नहीं पता चला एकदम। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। नाउ स्क्रीन इज विजिबल? ओके ओके। So we are talking about that the particular fractional part. So if we are having a x, y, z, these are the three values, floats, floating values, then we will have x equal to 6.0 divided by 7.0, then we will get the 0.8, because these two numbers are not of the same category, so that it will get divided to each other, right? If there is a 6 divided by 3, 6 divided by 2, then we will get the integer value. Then here is having 1.0 divided by 3.0, that means 0 point means one third, 0.33. Then z equals to minus 2.0 divided by 3.0, and we will get the minus 0.66. So what they are trying to tell you, that both the numbers are float, either it is integer but their result is the float। जब भी आप अगर इंटीजर नंबर्स को डिवाइड करते हो, जैसे मैं अगर एरिया निकालना चाहता हूँ सर्कल का, रेडियस मेरी जो है वो है 10, 15, ठीक है? तो पाई इंटू 10 इंटू 15, तो 10 इंटू 15 तो 150 हो गया, बट पाई की वैल्यू तो 3.14 है। सो अल्टीमेटली व्हाट डेटा टाइप रिजल्ट व्यू विल गेट, इंटीजर और फ्लोट? हाँ, यस। नहीं नहीं,
सॉरी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ओके मैंने पेरीमीटर का फॉर्मूला ले लिया था, राइट राइट, एंड ओके ओके ओके, radius should be the same, pi r square. So 10 10 if you are considering, so 10 into 10 that will be the 100 value. Okay, so 100 into the pi value, the result that we will get is float value, though your radius is integer, right? So when we have a such kind of a situation, in that case we have to use the real arithmetic, correct? So if there is a integer value but their product will generate the float value. Here we have the examples of x and y. Both are integers, means x को जो values दी गई है calculation part में, both are integers, but the result will be the float one. Now the operator modulus cannot be used with a real operands. जैसे floating point के लिए पहले हमने देखा था कि वो नहीं यूज होता है. During the division, the sign of a result is always the sign of the first operand, that is the dividend. डिवीजन हम जब करते हैं, जब डिविडेंड आता है, सो देयर साइन इज द फाइनल साइन. इफ इट इज अ नेगेटिव वी विल यूज इट नेगेटिव, if it is a positive then it will treated as a positive one. So first one is the integer arithmetic, that we will see integer data only. Then real arithmetic, that we will see result will be the float, but the operands will be float or integer. And now we'll have the mix mode. अगर दोनों का अगर मिक्स रहा, जैसे अगर मुझे 10 डिवाइडेड बाय 1.5 करना है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई रियल टाइम में एग्जांपल, जैसे जहाँ पे डिवीजन में आपको एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ नहीं करनी है, यानी इंटीजर वैल्यू नहीं यूज़ करनी है, ऐसा कोई एग्जांपल होता है क्या? एनी एग्जांपल दैट एनीवन रिमेंबर वेयर वी actually my question is, in general practice, if you want to calculate area of a circle, then area of a triangle, perimeter of circle, then circumference of a circle, so over there we are not using any division part, right? Yes, sir. So if you want to get a mixed mode arithmetic means one number divided by another number, but both data type are different. ऊपर वाले का अगर फ्लोट है तो नीचे वाले का मे बी, जैसे अभी अपन ने एक देखा था कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, करेक्ट, वो एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हो, मिक्स मोड में था. कैसे? तो पी एन आर, तो पी जो वैल्यू थी प्रिंसिपल अमाउंट, वो इंटीजर में कंसिडर की थी, आर जो था रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज इन अ फ्लोट. देन नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ पीरियड्स और द टाइम पीरियड, करेक्ट, दैट मे बी द इन द ईयर्स और द मंथ, ठीक है, अगर मंथ में है तो वहाँ पे फ्लोट आ जाएगा, ईयर्स में है तो वो कंप्लीट 1 ईयर 2 ईयर या फिर 3 ईयर आ जाएगा. सो कंप्लीटली डिवाइडेड बाय, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइडेड बाय द 100. 100 इज अगेन flow integer value, and the one is that is rate of interest is a float value. So float divided by integer value, that 15 divided by 10 on your screen. So in that case it is a mixed mode arithmetic, right? So when one of the operand is a real and the other operand is a integer. रियल का मतलब ये नहीं होता है कि भाई रियल हीरोज एंड ऑल दैट. रियल इट मीन्स दैट when we are talking about the fractional part, it will treated as a real constant or real number. The expression is called as a mixed mode arithmetics, जिसमें दोनों रहेंगे, integer भी रहेगा और real भी रहेगा. If either operand is of the real type, then only the real operation is performed and the result is always the real number. दो में से एक भी अगर real है तो उस केस में आपको, यानी फ्रैक्शनल पार्ट है जिसमें, तो उस केस में आपको फ्रैक्शनल पार्ट ही उसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है. सो द ओनली रियल नंबर ऑपरेशन इज परफॉर्म एंड द रिजल्ट इज ऑलवेज रियल नंबर. दस 15 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 1.5, वेयर एज 15 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 1. अब ये 1 कैसे कंसिडर किया? क्योंकि 10 ये जो वैल्यू है आपने लिया है रियल नंबर,
बट वो रियल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, क्योंकि पॉइंट जीरो इज हैविंग नथिंग, नो फ्रैक्शनल पार्ट. But when we are dividing 15 divided by 10, you will definitely get the 1 point value, and that value will be the mixed mode arithmetic. Correct? So your arithmetic operator is getting divided into the three parts: real arithmetic, integer arithmetic, and mixed mode arithmetic. Anything, any query regarding the arithmetic operator? Yes. Hmm. Yeah, but what kind of a data type we are applying to store the value 1? If you are applying the data type as a float, then it will store the 1.5. If you are applying the data type as a integer, then it will store the 1 only. Because हमको तो ये पता है कि 15 डिवाइडेड बाय 10 लिखो या फिर 15 डिवाइडेड बाय 10.0 लिखो, आंसर जो आने वाला है कैलकुलेटर में, इफ यू आर कंसिडरिंग द कैलकुलेटर, सो आंसर जो आने वाला है वो तो 1.5 आने वाला है ना, राइट? तो उस केस में अगर आप उसको 10.0 अगर लिखते हो तो वो तो 1.5 आने ही वाला है, क्योंकि दो में से एक रियल नंबर है. और अगर 15 डिवाइडेड बाय 10 अगर लिखते हो, ठीक है, तो उसका जो डेटा टाइप रहेगा, जो जिसमें स्टोर कर रहे हो, वो अगर फ्लोट रहेगा तो वो 1.5 लेगा, भले आंसर 1 है. और अगर इंटीजर डेटा टाइप जिसमें स्टोर करना है आपको, क्योंकि ये जो भी कैलकुलेशन हो रहा है 15 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 1, ये जो भी आपको लाइन दिख रही है, दैट शुड बी स्टोर इन सम वेरिएबल, अदरवाइज वी कांट सी इट. हम उसको देख नहीं पाते हैं. उसको देखने के लिए आपको किसी वेरिएबल में उसको स्टोर करना पड़ेगा, जस्ट इक्वल टू साइन यूज करके. 15 के पहले आपको c इक्वल टू 10, 15 डिवाइडेड बाय 10, और फिर उसका आंसर आएगा 1. अगर c का डेटा टाइप इंटीजर है तो 1 आएगा, अदरवाइज 1.5 आएगा इफ द डेटा टाइप ऑफ अ c इज फ्लोट, राइट? Anyone, anything else in arithmetic operator? Okay, moving further with the example that write a program to show the use of a integer arithmetic to convert a given number of a days into the months and days. जैसे बहुत बार ये सवाल हमारे दिमाग में आता है कि इफ़ यू वांट टू डू द सी प्रोग्रामिंग, सो व्हाट विल बी द टारगेट्स दैट वी हैव टू हिट. कौन से हमने प्रोग्राम सीखने चाहिए, कौन से प्रोग्राम हमने करके देखने चाहिए. जैसे बहुत से लोगों ने उस दिन लैब सेशन में उसके बाद मे बी आई एम सेइंग मे बी कुछ ऐप्स इंस्टॉल किए होंगे, या फिर लैपटॉप्स में कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे, लाइक विजुअल स्टूडियो या फिर टर्बो सी. ठीक है. सो नाउ इन दैट केस वी विल हैव अ सेवरल वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स दैट वी कैन डू. ठीक है. जस्ट लाइक दैट वी आर हैविंग अ टेम्परेचर इन अ सेल्सियस. हमारा जो टेम्परेचर रहता है वो सेल्सियस में रहता है. उसको अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो. मीटर में कुछ अगर वैल्यूज़ आपको मिली है तो उसको सेंटीमीटर में प्रोग्रामिंग के थ्रू कन्वर्ट करना है, वो भी आप कर सकते हो. जिसके लिए आप मे बी मोबाइल से कोई टूल यूज़ करते होंगे, या फिर कोई गैजेट वगैरह होगा उसमें मोबाइल में, तो वो यूज़ करते हैं हम, सेंटीमीटर टू मीटर, देन रुपीज़ टू डॉलर. आज का डॉलर का रेट क्या है वो अगर हमने कैलकुलेट पता है हमको, जैसे 78 79 वगैरह कुछ होगा, तो अगर किसी को $1,500 मिल गए तो उसको कितने रुपए मिले. ठीक है, ये कैलकुलेट अगर करना है, सो विद द हेल्प ऑफ अ सी प्रोग्राम वी कैन कैलकुलेट इट, राइट? सो ऐसे बहुत से टास्क हो सकते हैं. ठीक है, वो आप कर सकते हो. क्लियर? सो अरिथमेटिक ऑपरेटर को डील करने के लिए वी हैव वन एग्जांपल दैट वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन नंबर ऑफ डेज इनटू द मंथ्स. जैसे 256 डेज, 111 डेज, या फिर 230 डेज. ठीक है, तो इसके कितने मंथ, कितने डेज होंगे, ये हमको कैलकुलेट करना है. सो फॉर दैट वी यूज द टू वेरिएबल्स, एज अ मंथ एज एन इंटीजर वेरिएबल एंड डेज इज ऑल्सो द इंटीजर वेरिएबल, बिकॉज देर इज नो फ्लोट पॉइंट इन केस ऑफ द मंथ एंड डेज. ठीक है. तो जैसे डेट ऑफ बर्थ,
के हिसाब से हम देखते हैं कि 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 1 महीना 1 साल 2 महीने 10 दिन, या फिर ऐसे इस हिसाब से हम किसी की डेट ऑफ बर्थ वगैरह हम वहाँ पे देखते हैं, जैसे न्यूबॉर्न अगर कोई है तो उस केस में. So likewise, if you want to calculate the month and days, what we have to do? We just have to take a one raw data from the user, that is the printf, enter the days, total value, जितने भी days calculate किए होंगे आपने. जैसे आपको अगर पता होगा कि एक मूवी थी DDLJ, देखिए सबने? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ, शाहरुख खान और कौन था? काजोल. ठीक है. तो पुणे में एक थिएटर है, आई गेस अभी पैंडेमिक तो में तो नहीं पता है, बट मैंने पेपर में पढ़ा था. पुणे में जब से वो मूवी रिलीज हुई है तब से अभी भी उस थिएटर में वो मूवी के शोज होते हैं. आई डोंट नो द नेम, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ थिएटर, बट वहाँ पे अभी भी लोग देखने के लिए जाते हैं DDLJ. ठीक है. सो दैट मच ऑफ क्रेज. तो उन्होंने बताया था कि ऑलमोस्ट 25 ईयर्स, तो वो डेज में भी उन्होंने बताया था. ठीक है, कुछ तो भी आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. अगर ऐसी एक आधी वैल्यू आपको मिल जाती है कि यस पिछले 1200 दिन से ये चीज़ हो रही है, पिछले 1500 1600 या फिर 2500 3000 दिन से ये सब हो रहा है, ठीक है, या फिर ये एक एक्टिविटी हो रही है. ठीक. सो इन दैट केस इफ यू वांट टू कैलकुलेट द month, right, or the year, that we can also calculate from the days. ठीक है, मंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ईयर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ वी विल हैव द एंटर डेज. डेज हमने ले लिए, दैट वी हैव टू रीड विद द हेल्प ऑफ स्कैनएफ. स्कैनएफ का काम क्या है? तो जो भी इनपुट यूजर ने दिया उसको हमको रीड करना है, मीन्स सिस्टम को रीड करना है. हम रीड नहीं करते बट सिस्टम रीड करती है. सो परसेंट डी क्यों है? बिकॉज डेज is defined in a data type that is integer, that's why we use the percent %d. Now simple calculation that we know that months equal to days divided by 30. जितने भी days मिले होंगे divided by 30, जो भी वैल्यू आएगी, मंथ की वैल्यू जो भी आएगी यानी क्या रहेगा, तो वो इंटीजर वैल्यू आएगी, वो इंटीजर ही कंसिडर करेगा. ठीक है, क्योंकि हमने मंथ्स का जो डेटा टाइप डिक्लेयर किया है वो इंटीजर है, तो वो इंटीजर ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा. एंड देन वी आर यूजिंग द मॉड्यूलो ऑपरेटर. ठीक है, मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर. डेज, जितने भी डेज है डिवाइडेड बाय 30. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डेज आएंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो एक तो एब्सोल्यूट वैल्यू आ सकती है कोई भी, या अगर जीरो आता है देन वी कैन से दैट मच ऑफ मंथ, मीन्स मंथ कंप्लीट हो चुके हैं उसके. अगर मंथ कंप्लीट नहीं है तो जो भी रिमाइंडर आएगा सो दैट मच ऑफ डेज. ठीक है, सो वी विल गेट द वैल्यू इफ यू आर एंटरिंग द 265. हाँ यस. क्योंकि हमको ये कैलकुलेट करना है कि अगर 30 डेज मीन्स जैसे हम 30 के मल्टीप्लाई में अगर लेते हैं तो 120 डेज अगर हो गए हैं, हमने एंटर द डेज और डेज में 120 डाल दिया, तो 120 डिवाइडेड बाय 30 यानी मंथ निकल जाएंगे. ठीक है, 4 महीने, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 months. सो वैल्यू ऑफ मंथ विल बी द 4. नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डेज, ठीक है, सो 120 मॉडुलस 30, इसका आंसर क्या आएगा? 120 मॉडुलस 30 का 0 आएगा. मीन्स कंप्लीट 4 महीने हो चुके हैं. और वही मैं 121 अगर लेता हूँ, एक दिन ज़्यादा अगर लेता हूँ, ठीक है, तो 121 मॉडुलस 30, इसका आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा ना. ठीक है, तो वो क्या बताएगा फिर फाइनल आंसर में? 4 month एंड डेज इक्वल टू 1. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं
इज स्क्रीन विजिबल? यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो हमारे कुछ काम का नहीं है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। राइट, हैश इंक्लूड stdio.h void main, then integer months days, enter the days, then percentage, these signs are incorrect, so we will remove it। यहाँ पे हमको एरर आ जाती थी क्योंकि वो वर्ड के फॉर्मेट में है, डबल कोट्स के जो साइन है वो वर्ड के फॉर्मेट में है। ठीक है, नाउ वी विल रन इट। हेलो कहाँ आ गया? फैटल एरर स्ट्रे 3 इंटर द डेज, ओके ओके, उसमें भी वही एरर है। सी दैट whatever the syntax they have prescribed, if you are violate it then it will show the error। उसको अगर आपने violate किया है या फिर उसको ignore किया है, in that case it will show the error। now we will enter 120 as a days। I have a answer that 4 months and 0 days, correct, क्योंकि ये absolute value produce कर रहा है। 120 divided by 30 we will get the 4 value, and 120 modulus 30 will get the remainder as a 0। so it means that we can say that the complete 4 month will be there। now if we use other value 139 and then enter, so what it says 4 month and 19 days। तो ये जो 19 है ये कैसे कैलकुलेट हुआ? मॉड्यूलो 30 डेज मॉड्यूल 30। तो मॉड्यूलस का जो यूज था वो यहाँ पे आपको पता चल गया कि व्हाट इज द यूज। सो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन गेट द डिजायर आंसर। तो ये एक सिंपल है, इसमें डेज और मंथ मिलते हैं। किसी को अगर काउंटर लगाना है, जैसे मोस्टली मैं एग्जांपल जब भी देता हूँ तो मूवीज़ के ज़्यादा देता हूँ, तो अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी चंद्रयान, मंगलयान सॉरी। ठीक है, तो मंगलयान में उन्होंने जो सेटअप किया था साइंटिस्ट लोगों ने, तो वहाँ पे काउंटर लगाया था उन्होंने कि उनके पास इतने डेज बाकी हैं, इतने आवर्स बाकी हैं। किसी ने वो सीन देखा है क्या? काउंटर, रिवर्स काउंटर। ठीक है, वो जनरली भी समझो किसी ने नहीं भी देखा होगा। तो रिवर्स काउंटर दैट वी नो। ठीक है, जैसे हम टाइमर लगाते हैं हमारे मोबाइल में, अलार्म, तो वो भी क्या है? रिवर्स टाइमर है। ठीक है, अगर हम रात को 10 बजे सो रहे हैं, 11 बजे सो रहे हैं और सवेरे 6-7 बजे का हम अगर टाइमर लगाते हैं, ठीक है, तो वो रिवर्स काउंटर की तरह कैलकुलेट करता है। और जब भी वो ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो होते से ही वो उसको बीप करना शुरू कर देता है। ठीक है, अलार्म की जो इवेंट है वो कंप्लीट होने की वजह से आपको अलार्म का साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे भी वो क्या कर सकते हैं हम, मंथ और डेज अगर मिल गए हमको, तो आप डेज के बाद और उसको अगर डिवाइड करते हो 60s में, यानी 24 आवर्स का क्लॉक अगर लेके, तो आप उसमें भी और निकाल सकते हो। ठीक है, कि आज की तारीख में जैसे इफ़ यू आर बॉर्न इन 1989 और 1990 समथिंग, सो कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, कितने आवर्स, कितने सेकंड्स, मिनट्स एंड कितने सेकंड्स हुए हैं, ये पूरा अगर कैलकुलेशन करना है, सो वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल प्रोग्राम, जिसमें सिर्फ आपको एक डेज की वैल्यू दे देनी है या फिर जो भी इनपुट आपको रिक्वायर्ड है वो अगर आप दे देते तो इट विल कैलकुलेट कंप्लीट डेटा। राइट, सो दैट वाज अ पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली उन्होंने दो अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ किए हैं, वो कौन से हैं, कोई बता सकता है? एग्जैक्टली exactly। अगर बाकी अगर बोलेंगे तो वो तो भी मुझे अच्छा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्विस से ही मैं क्वेश्चन आंसर करूँ।
ठीक है। सो बाकी भी आंसर कर सकते हैं इफ़ दे नो, अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो इट्स ओके। सो डिवीजन and the modulus, these are the two operators that we used as an arithmetic operator, right? So moving further, that is a relational operator. As per the name, that relational operator, we often compare the two quantities and depending on their relation take a certain decision. ठीक, रिलेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, अगर वो उससे बड़ा है तो, छोटा है तो, बराबर है तो, ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ किसी से मैच होती है, ठीक है, कि अगर समझो डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल और किसी की 1 अप्रैल है, सो वी से दैट वी बॉर्न ऑन अ सेम मंथ सेम डेट बट ईयर मे बी डिफरेंट, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ईयर वी कैन से दैट ही इज और शी इज ग्रेटर देन मी, ठीक है, और स्मॉलर देन मी, राइट। सो वी कैन एस्टेब्लिश द रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम टर्म्स like numbers, right? So the for example, we may compare the age of a two person or the price of a two items which we do frequently। जब भी आप ऑनलाइन परचेसिंग करते हो या फिर ऑफलाइन परचेसिंग करते हो, जिनको स्ट्रीट परचेसिंग की अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा तो वो जनरली वो करते हैं कि एक शॉप पे जाके वही चीज़ देखते हैं, वही चीज़ दूसरे शॉप पे जाके देखते हैं, वही चीज़ तीसरे शॉप पे जाके देखते हैं और फिर आके फर्स्ट शॉप से वो खरीदते हैं। ऐसा कोई करता है क्या? स्पेसिफिकली गर्ल्स करता है ऐसा कोई? नहीं करते हो? ओके। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। सिस्टर के साथ गया या फिर मम्मी के साथ गया या फिर वाइफ के साथ गया, किसी के साथ भी गया हो शॉपिंग के लिए, बहुत बार ऐसा हुआ है। यू गो इन अ फर्स्ट शॉप, बार्गेनिंग, टोटल बार्गेनिंग होती है, सेकंड शॉप में भी वही होता है, थर्ड शॉप में भी वही होता है और फोर्थ शॉप में भी वही होता है और चारों शॉप में से कुछ भी नहीं लिया जाता, फिर से वापस जो पहला शॉप है वहाँ पे आते हो, फिर भैया वो दे दो आप जो भी है, ठीक है, उसको बोला जाता है कि यही पैक करके दे दो, ठीक है। सो ऐसा बहुत बार मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। सो व्हाट वी डू, वी जस्ट डू द कंपैरिजन, ठीक है। अब वो फीमेल साइड में ही करते हैं ऐसा नहीं, मेल साइड में बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज इट बट इट्स अ पैटर्न, ये पैटर्न होता है जनरली शॉपिंग का। ऑनलाइन शॉपिंग में भी हम वही करते हैं, अगर मोबाइल लेना है हमको तो अलग अलग कंपनीज के मोबाइल एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, इसमें इतना गीगाहर्ट्ज़ वगैरह क्या प्रोसेसर है, इसका रैम इतना है, प्रोसेसिंग स्पीड इतनी है, बाद में कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी है, बाद में और कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगे। So that was comparison with each other and we will establish the one relation, it is better, it is quite less better, right? So the price of two items and so on, these comparisons can be done with the help of a relational operators. We have already used a symbol less than, meaning उसका less than, ठीक है, and expression a is less than b और 1 is less than 20, तो एक एक्सप्रेशन बन जाता है उसकी वजह से। ए और बी की फिलहाल हमको वैल्यू पता नहीं है बट वी कैन से दैट ए इज़ लेस देन बी, ए में भी तो कोई पर्सन होगा और बी में भी तो कोई तो भी पर्सन होगा। सो ए इज़ लेस देन बी इन टर्म्स ऑफ देयर एजेस and 1 is less than 20, which is true. Containing a relational operator is a term as a relational expression. The value of a relational expression is either 1 or 0. वो आगे हम देखेंगे जब 10 और 20 का हम कंपैरिजन करेंगे 1 और 0 कैसे आती है। It is one of the specified relation is true and 0 if the relation is false. अगर 1 है, it is 1 if the specified relation is true and 0 if the relation is false. For example, जैसे वहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया 10 is less than 20, it is a true, 10 छोटा है 20 में से, तो जो वैल्यू जनरेट होने वाली है दैट वैल्यू विल बी द वन वैल्यू, बाइनरी वन, वी कैन से दैट। बट 20 इज लेस देन 10, 20 ये छोटा है 10 से, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू जनरेट होगी दैट मे बी द जीरो। सो विद द हेल्प ऑफ दैट व्हाट वी आर डूइंग और वी आर गेटिंग द एग्जैक्ट आंसर। अगर ट्रू होता है जैसे किसी का एज है 65, 65 एज है
और हम उसके बाद वैल्यूज़ दे रहे हैं 35 एंड 29, ये दो वैल्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि ये 65 से बड़ी है या छोटी है, जनरली हमको ये पता है, ठीक है, वी नो दैट पर्टिकुलर दैट 35 एंड 29 बोथ आर स्मॉलर दैन दैट ऑफ द 65, एंड 65 वाला जो भी पर्सन होगा वो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, एज पर द 60s रूल, 60 के आगे जो रहते हैं वो सीनियर सिटीजन रहते हैं। बट when we compare it, 35 is compared with the 65, it means that 35 less than 65, ये अगर हम रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं 35 65 से छोटा है, तो ये जो रिजल्ट आने वाला है वो 1 आने वाला है, दैट मीन्स अ ट्रू रिजल्ट। बट इसको अगर अपोजिट कर दिया कि 35 इज ग्रेटर देन 65, अल्टीमेटली आपका रिजल्ट हो जाएगा 0। 0 मीन्स इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, और 29 के साथ भी वैसे ही हो सकता है। So likewise, how we establish the relation in between the two numbers, age of two persons, or some prices of items that we are comparing, right? So the C supports 6 relational operators that we will discuss. These operators and their meanings are shown below. First one is the less than sign. लेस देन साइन वो लेस देन के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। उसको आप ये नहीं बोल सकते कि अगर 10 लेस देन 20 अगर लिया है तो 20 को इधर ले लो, यानी 20 पहले राइट हैंड साइड पे तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो। 20 लेस देन 10, 10 लेस देन 20, व्हाट इज द रिजल्ट? आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? 10 लेस देन 20, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, 10 लेस देन 20। अब वो 20 को आप जो राइट हैंड साइड में है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, 20 लेस देन 10, फॉल्स हो गया, ठीक है। मीन्स लेस देन जो वैल्यू है उसका मीनिंग चेंज हुआ क्या? नहीं। आइदर यू चेंज द ऑपरेंड्स, मीन्स वैल्यूज चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, बट लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। नाउ लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे ये जो इक्वल टू साइन है दैट मीन्स इट इज एग्जैक्ट। अगर आपने सेट किया है कि अगर 45, हाँ, अभी फिलहाल क्या चल रहा है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है कोविड-19 का, ठीक है। उसमें कोवैक्सीन है और कोविडशील्ड है। इंडियन कौन सा है, किसी को पता है? इंडियन ब्रांड भारत बायोटेक का। कोवैक्सीन, एग्जैक्टली। और कोविडशील्ड जो है वो कहाँ का है? एक्चुअली कोवैक्सीन जो है इट इज़ कम्प्लीटली डिज़ाइन डेवलप बाय द भारत बायोटेक हैदराबाद इंस्टीट्यूट, वो प्योरली इंडियन है। इन केस ऑफ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कोविडशील्ड, it is in collaboration with the Oxford and I guess one country, either England, ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में है ना, हाँ इंग्लैंड में है। सो उनके कोलैबोरेशन से उन्होंने वो एस्टेब्लिश किया है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। तो वहाँ पे जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट थे मे बी इंडिया के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, तो इन कोलैबोरेशन है, ठीक है। सो उसको हम पार्शली बोल सकते हैं इंडियन, पार्शली इंग्लैंड बेस, ठीक है, मीन्स फॉरेन, राइट। बट कोविड कोवैक्सीन इट्स कम्प्लीटली फॉर्म अ इंडियन बेस। बट उसकी लिमिट क्या है, कौन ले सकता है वैक्सीनेशन फिलहाल? 45 प्लस, 45 प्लस, राइट। अगर किसी का अगर किसी का वैक्सीनेशन वो शायद 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था 45 वाला, अगर किसी का 5 अप्रैल को बर्थडे था और वो 45 का हो गया तो वैक्सीन ले सकता है क्या? एनीवन? आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? 1 अप्रैल 2021 को उन्होंने एक प्रेस रिलीज की कि अब 45 ईयर ओल्ड citizen can take the vaccination no matter whether they are suffering from any disease or something else, ठीक है। इसके पहले था उनका
कि जिनको डिसीजेस है, अलग अलग प्रकार की बीमारी है, तो वो पहले लेंगे। बट अभी 45 एज के ऊपर जो भी है वो ले सकते हैं। तो किसी का अगर 1 अप्रैल को नहीं है 45, बट 5 अप्रैल को उनका बर्थडे था, वो बर्थडे हो गया, अब वो 45 कंप्लीट हो गए, तो वो वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? ओके, ओके, ओके। हाँ, रिपीट रिपीट। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो प्रोसीजर तो ठीक है। आई एम आस्किंग अबाउट द एज लिमिट, एज रिस्ट्रिक्शन जो है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो आप जितने भी है अभी फिलहाल 45 50 इंक्लूडिंग मी, हम भी करने के लिए रेडी है। बट हमको मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि हम 45 प्लस नहीं है या फिर 45 नहीं है। ठीक है, माई क्वेश्चन इज सिंपल, दैट इफ दे हैव सेट अ प्रोग्राम, योर एज शुड बी ग्रेटर देन 45। अगर उन्होंने लिखा है ग्रेटर देन 45, जो थर्ड नंबर का हमारे इसमें ऑपरेटर है, इज ग्रेटर देन 45 अगर है, तो किसी का भी एज 45 अगर हो जाता है तो उनको वैक्सीन नहीं मिलेगी इस पर्टिकुलर सेकंड फेज में, सेकंड या फिर थर्ड फेज में। फर्स्ट फेज था वो हेल्थ वर्कर्स के लिए, बाद में फिर नॉर्मल सिटीजन विथ 60+, एंड थर्ड फेज था 45। तो ये थर्ड फेज जो है वैक्सीनेशन का, उसमें उनको नहीं मिलेगी अगर उन्होंने प्रोग्रामिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सेट किया है ग्रेटर देन। अगर उन्होंने ग्रेटर देन इक्वल टू 45 सेट किया होगा, then and then the person whose birthday on 5th of April will eligible on the same day or day after 6th अप्रैल को एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि वो 45 प्लस हो गए। उनका जो बर्थ था वो 5 तारीख को हुआ था, जब भी हुआ था, तो 45 ईयर्स बैक, तो 45 उनकी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ दे एंटर इनटू द 46। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स, ये इक्वल टू साइन का इंपॉर्टेंस देखिए कितना ज़्यादा है। ठीक है, सो इफ़ यू आर हैविंग ग्रेटर देन, दैट मीन्स ग्रेटर देन 45, देन 45 जिसका हुआ वो एलिजिबल नहीं रहेगा, 46 वाला एलिजिबल रहेगा, 45 वाला नहीं रहेगा, 44 तो बिल्कुल ही नहीं। बट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर आप कंसिडर करते हो, देन एंड देन 45 एज पर्सन इज ऑल्सो एलिजिबल टू गेट वैक्सीन। क्लियर? हाँ, यस। श्योरली, बट बट द केस इज 31 मार्च को उन्होंने प्रेस रिलीज अगर कर दी हो, हाँ, कर दी थी शायद, 30 या 31 को रिलीज कर दी थी कि अब प्रकाश जी जावड़ेकर जी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 45 प्लस जो भी है उनको वैक्सीन मिल जाएगी। अगर 31 मार्च 2021 को किसी का बर्थडे होगा और वो उनका एज होगा 45, हो गया 45th बर्थडे उनका हो गया, ठीक है, दैट मीन्स ही और शी एंटर इनटू द 46। नहीं, राइट। सो इन दैट केस, if the program which is having the variable means वैलिडेशन जो चेक किया जाता है ना, जैसे आज अगर मैं मेरा आधार कार्ड का नंबर डालता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसके ऊपर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1989। सो वंस 1989 विल बी फ्लैश, सो इट विल से दैट यू आर बिलो 45। करेक्ट? वो वहाँ पे फ्लैश कर देगा कि आप बिलो 45 एंड यू आर नॉट एलिजिबल। But once I entered the age like 1958 और 1955 समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ये अगर एज में डालता हो, सो योर एज विल बी द अबव 60, यू आर एलिजिबल, जो भी ईयर रहेगा समझो। तो 31 अप्रैल को अगर किसी का बर्थडे होता है और 31 मार्च को अगर किसी का बर्थडे होता है और 1 अप्रैल, if he is allowed, then if he is allowed means if he is complete its 45th birthday and enters into the 46th, so he is eligible or he or she is eligible as per the greater than equal to sign. What I am trying to explain, I am trying to explain that operator अगर उन्होंने ग्रेटर देन यूज किया होगा तो फिर 46 होने देना पड़ेगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू यूज किया होगा तो 45 जैसे ही कंप्लीट हो जाता है यू आर एलिजिबल। बट यहाँ पे वो नहीं चलेगा 44 वाला, 44 कंप्लीट हो चुके हैं और 45 तो रनिंग है मेरा, तो दे दो।
तो वो नहीं चलेगा, रनिंग वाला नहीं चलेगा, कंप्लीटेड वाला लगेगा, राइट? क्लियर पॉइंट? ओके, देन equal to, this equal to is just simple example is that if you got the 40 marks in your paper, ठीक है, तो जो पासिंग के लिए मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो भी 40 है, ठीक है, सो मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इज 40 एंड मार्क्स शुड बी सिक्योर, और शुड बी नहीं, मस्ट बी सिक्योर बाय द कैंडिडेट और द स्टूडेंट, दैट विल बी ऑल्सो 40। दोनों जगहों पे अगर आपने 40 लिख दिया और बीच में इक्वल टू है, इज इक्वल टू, ठीक है, तो इन दैट केस क्राइटेरिया विल बी सेटिस्फाइड। आपको 40 मार्क्स चाहिए थे, आपने 40 मार्क्स सिक्योर किए, you are pass. But if you write 39 equal to 40 which is fail, ये इक्वल नहीं हो सकते, 40 इक्वल टू 40 हो सकता है, बट 39 इक्वल टू 40 नहीं हो सकता है, ठीक है। सो इक्वल टू इज यूज फॉर अ कंपैरिजन, सिंगल इक्वल टू इज यूज फॉर अ असाइनिंग अ वैल्यू, करेक्ट। a इक्वल टू 10, तो ये जो 10 है ये हमने स्टोर किस वेरिएबल में किया, a वेरिएबल में, इन दैट केस इट इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर, वो आगे जाके हम देखने वाले हैं। 10 is assigned to the variable a, that means single equal to is used for a value assigning, but double equal to is used for a comparison. If my age is compared with your age, ठीक है, then there is a difference, correct, so it is not equal. If my age is compared with the my family members, mother or father, it is not equal. So for the comparison we have to use the double equal to, which is called as a is equal to, is equal to। और अगर एक एक्सक्लेमेशन एंड इक्वल टू साइन है तो इज नॉट इक्वल टू, राइट। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर लेस देन इक्वल टू